Now the trouble seems to be mounting for Delhi Minister Manish Sisodia, who has now resigned from his post, but the trouble seems to continue. Last night he was arrested by the ED after the grilling which went over 6 hours. Now Manish Sisodia today has will appear before the court, and the Rouse Avenue Court in Delhi will hear his bail plea. Now 12 days after he was arrested by the CBI, ED has arrested him, and ED is also gearing up to take his custody. Now what remains to be seen is whether he will get some relief today from the court or not. The alleged claims against Manish Sisodia is that he destroyed several evidences and changed phones. Now the agency claimed that he purchased SIM cards in the name of others and brought phones in the name of secretary via e-commerce websites. Over the course of investigation, the agency has also learned that some of the proceeds of crime could have been used to fund the Aam Aadmi Party's Goa election. ED also says cash payments to the tune of 70 lakh rupees were made and many volunteers were paid in cash. Right after his arrest, Sisodia released an emotional letter from Tihar jail. He cited that while the BJP is indulging in jail bhejo rajniti, the Aam Aadmi Party's Shiksha Rajniti will crush BJP's agenda. He asserted that politics of education will take over BJP. The Aam Aadmi Party says that it's Modi Sarkar's mission to keep Sisodia in jail despite not getting an iota of evidence against the former Delhi Deputy CM. While BJP says that the Liquorgate sins of Sisodia and his team can't be hidden from any longer and he has to face the consequences. Listen in to the war of words. मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर मामला होता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए, अब क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आप ही कहते थे कि ईडी और सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत गंभीर मामला है। 100 करोड़ की इधर से उधर जो आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि वो कल बाहर आने वाले थे, इसलिए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। आप कानून से ऊपर है क्या? देखिए, ये कहीं ना कहीं अब एक सर्वविदित सत्य हो गया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। वरना आप मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया के घर पे 14 घंटे तक छापेमारी हुई, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी हुई, कुछ नहीं निकला। तो जबरदस्ती एक आदमी को इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता आप बना रहे हैं। Well, the CBI believes that Manish Sisodia and his cabal manipulated changes in the cabinet note and that the profit margin for the wholesalers was increased suddenly from 5% to 12%. CBI sources tell Times Now that the expert panel had red flagged the irregularities after it availed legal opinion. The report was sent to Sisodia, but strangely, the cabinet note didn't include the legal opinion that was not in favor of the excise minister's policy. The investigators believe that the liquor policy was tweaked to benefit certain liquor barons that got licenses to sell in Delhi. The liquor licenses were given to wholesalers despite the expert committee stating that liquor company that manufactures or is a wholesaler should not be given a color liquor license to retail in any zone. The main beneficiaries were Indospirits and Enrica Enterprises. Now for more on this, we have Mohit Om live with us. And मोहित, आप बता सकते हैं आज क्या सिसोदिया की रणनीति रहेगी? क्या आज उन्हें बेल मिल सकती है या फिर जो ईडी ने उन पर कल शिकंजा कसा है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा? देखिए, आज मनीष सिसोदिया को करीब 2 बजे के आसपास तिहाड़ जेल से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। हो सकता है, कुछ संभावना ये भी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पिछले सुनवाई के दौरान कहा था कि मुझे कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाए, इससे मेरी मूवमेंट भी बनी रहनी चाहिए क्योंकि मैं एक कमरे में बंद रहता हूँ, उससे मुझे काफी परेशानियां हो रही हैं। और तो हो सकता है कि आज यहाँ से उनको फिजिकली कोर्ट के अंदर 2 बजे ले जाया जाए। एक तरफ बेल पे सुनवाई है, जो सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है, उस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया आज जमानत
वो रिलीज हो जाते, लेकिन उससे पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कल देर रात गिरफ्तारी की, जिसके बाद राजनीति का अपने पूरे चरम पर है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, उस पर भाजपा लगातार जवाब दे रही है कि आपने घोटाला किया है, आपने शराब नीति के चलते अपने शराब कारोबारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने की जो नीति अपनाई है, उसके बदले आपको जेल जाना पड़ रहा है। और घोटाले और जांच में साफ हो गया है कि किस तरीके से घोटाले आपने किए, मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है। और मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में गंभीर मामला है। आपको बताएं कि 6 मार्च को ही ईडी ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि मनीष सिसोदिया से उनको पूछताछ करनी है। 3 दिन की परमिशन मिली थी। 7 तारीख को पहले पूछताछ हुई थी। 6 घंटे ईडी की टीम तिहाड़ जेल आई थी, जहां पर पूछताछ की गई थी। होली की छुट्टी थी और कल फिर तिहाड़ जेल ईडी की टीम पहुंची है और करीब 8 घंटे यहां पे पूछताछ की है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आज देखना है कि कोर्ट के अंदर ईडी अब आगे की रिमांड मांगती है, जहां सीबीआई में मनीष सिसोदिया जमानत मिलती है। आज 2 बजे काफी अहम है मनीष सिसोदिया के लिए, जब राउतवानी कोर्ट के अंदर पेश होंगे। देखना है कि आगे कोर्ट क्या रुख इख्तियार करती है। जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स नाउ के साथ बने रहिए। और